Hello students, today in this lecture I will discuss the concept of graphs when the body is moving along a straight line. That is the position time graphs and the velocity time graphs for the body moving along a straight line. Got it? Now, first one, the position time graph. Now since the first type which we are going to discuss, it will be the position time graph, and the other would be the speed time or the velocity time graph. बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं. समझ आ गई बात? तो फ्रेंड्स, पोजीशन टाइम ग्राफ में डिफरेंट सिचुएशंस होगी. फर्स्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट? अब ध्यान से देखिए. द फर्स्ट ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट. नाउ सिंस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, then the position of the body, it does not changes with time. The position of the body does not changes with time. That is, the position of the body at the different time instants is same. Okay? Now, in this case, let us suppose this is say the body or say any person who is standing at the point say A. Okay. Now at time t equals to 0, the first observation is made. The position is supposed to x1. At any other time instant, say t2, the next observation is made. Okay, clear? चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम को बोलते हैं. Say at time t equals to 0, at time t equals to t1, at time t equals to t2. मतलब at the different time instants, when it is observed for this person say who is standing at the point A, the person A does not changes its position. That is, the position of the person A is x1 at the different time instants. So what we are going to do, we are going to plot the position time graph for this person. Okay. Now in this case, whenever the body is at rest, the horizontal line, it refers to the time axis. The vertical line, it refers to the position axis. Got it? Now at the different time instants, as it is clear from the situation, the position of the body, it remains unchanged. So since for the different time instants, the position of the body is same. So in this case, we are going to obtain a straight line graph which is parallel to the time axis. Clear? बात समझ आ गई? तो ग्राफ कैसा है? Straight line graph parallel to time axis. बात समझ आ गई? कॉपी करें. Done? Now sirs, the second graph, the body is moving with constant velocity. Body moving with constant velocity along the straight line. Got it? Now, it is the first graph. Now since when the body is in uniform motion,
When the body is in uniform motion, then the body will cover the equal distances in equal intervals of time. बात समझ आ गई? तो in this case, first of all, we are talking about the positive velocity. That is, the body will have constant velocity, which is positive. We will have two different graphs. Say it is the origin, say the time axis, say the position axis. The graph will be the straight line which is inclined at some acute angle with the time axis. बात समझ आ गई बेटा? The graph is a straight line which is inclined at some acute angle with the time axis. अब ध्यान से देखिए, पोजीशन जब इंक्रीज, टाइम जब इंक्रीज होता जा रहा है तो बॉडी का पोजीशन इंक्रीज होता जा रहा है. बात समझ आ गई? तो सिर्फ या तो ये सिचुएशन या फिर ये सिचुएशन. तो दो ग्राफ्स हैं यहाँ पे. It is say the graph first and it is say the graph second. The position is plotted over here. The time t is plotted over here. Again, the graph is a straight line which is inclined at some acute angle with the time axis. Got it? It is the graph second. Okay? बेटा देखिए, फर्स्ट सिचुएशन में जो ग्राफ होगा वो उसका जो सिचुएशन है मैं वो बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं. कॉपी करें, पहले आप एक काम करें, इनको कॉपी कर लें आप. पॉजिटिव वेलोसिटी के ग्राफ से कॉपी कर लें. हो गया? डन? अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वेलोसिटी का. लेट अस कंसीडर द बॉडी विच इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. द बॉडी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द ओरिजिन, से x is equals to 0, then it crosses A, then it crosses B, then it crosses C. The position is say x1, the position is say x2, the position is say x3. The time t is equals to 0 is marked at the point O. That is, the point O is the position origin as well as the time origin. The time instant, say t is equals to t1 when the body crosses the point A. The time instant t equals to t2 when it crosses the point B. The time instant t equals to t3 when the body crosses the point C. Now in this case, friends, the body is moving along the positive x-axis, okay, and the body will have positive velocity. तो friends, ये ग्राफ फर्स्ट का इलस्ट्रेशन है. ये ग्राफ फर्स्ट का इलस्ट्रेशन है. ठीक है, हमने देखिए ग्राफ को स्टार्ट कहां से किया था? ग्राफ को स्टार्ट किया था फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, जहां पर टाइम टी का भी वैल्यू 0 था और जहां पर एक्स का वैल्यू भी 0 था. फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल के अलोंग जैसे आप मूव करते हैं तो टाइम का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है. साइमल्टेनियसली जब आप वर्टिकल को देखते हैं तो स्ट्रेस पोजीशन भी बढ़ती जाती है. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? नाउ इन दिस केस द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट अस सपोज टू वेक्टर v. तो ये फर्स्ट सिचुएशन समझ आ गई. ओके, नाउ द सेकंड सिचुएशन. नाउ द सेकंड सिचुएशन, ये ग्राफ 1 के लिए कॉपी कर लें. कॉपी करिए क्योंकि इसी के अंदर मुझे मॉडिफिकेशन करना है. डन? Now, since situation second, it is say the point A dash, it is say the point B dash. X equals to minus x2, x equals to minus x1, and x is equals to 0. अब की बारी टाइम ओरिजिन हम पॉइंट B को ले रहे हैं, B डैश को ले रहे हैं, सॉरी. टाइम t is equals to 0, टाइम t equals to say t1, टाइम t equals to say t3. Then time t is equals to say t4, then time t is equals to say t5, then time t is equals to say t6. Again, the body is moving along the positive x-axis. ठीक है? ग्राफ सेकंड के अंदर, ग्राफ सेकंड के अंदर बेटा देखिए, ग्राफ सेकंड स्टार्ट कहां से किया था? हमने लोअर हाफ से स्टार्ट किया था, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ x से स्टार्ट किया था. तो पहले टाइम बढ़ता जाएगा,
नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होता जाएगा, उसके बाद किसी एक टाइम पर एक्स का वैल्यू रिड्यूस होकर के 0 होगा, वो जो बीच में पॉइंट आया था, फिर उसके बाद टाइम बढ़ता जाएगा, पोजीशन बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू एक्स बढ़ता जाएगा। गॉट इट सेंस? तो ये सिचुएशन है सेकंड ग्राफ की। Yes, so it's copied. Okay, now for negative velocity. Negative velocity. ठीक है सर, साथ में सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर भी दो ग्राफ्स होंगे। Position is plotted over here, time t is plotted over here. The graph is the straight line. The graph is the straight line which is inclined at some obtuse angle. बेटा यार एंगल नहीं लेना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करने एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करने हैं। बात समझ आ गई? तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होता जा रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। समझ आ गई बात? सिचुएशन इज, let us suppose let us say the positive x-axis and the body is moving towards the negative x-axis. I am saying towards the negative x-axis. Point O के left में negative x-axis. समझ आ गई बात? x equals to 0 marked over here. x equals to say x1, x is equals to say x2, x equals to say x3. अब टाइम ओरिजिन ध्यान से देखिए, टाइम ओरिजिन अब की आ रही, हमने पॉइंट सी को कंसिडर किया। ओके, मर्जी हमारी, टाइम ओरिजिन किसी को भी ले सकते हैं, पोजीशन ओरिजिन किसी को भी ले सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम टी इज से t1, टाइम t इज से t2 एंड टाइम t इज से t3। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, जब बॉडी बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होता जा रहा है। ध्यान से देखें, say this is say the origin, the horizontal is the time axis, this vertical is the position axis. With the increase in time, the positive value of x is decreasing. Got it? Okay, the situation is clear. तो यहां पर भी दो ग्राफ्स हैं। सेकंड ग्राफ ध्यान से देखें, कॉपी करें, इसको कॉपी करिए। Now the second situation is, पॉजिटिव वैल्यू एक्स का यहां पर प्लॉट करते हैं, ओरिजिन यहां पे करते हैं, टाइम टी को यहां पर कहीं प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सिंस द ग्राफ इट विल बी द स्ट्रेट लाइन अगेन, द ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज होगा। Let us suppose that this is b dash, this is say a dash, it is say o, it is say a, it is say b, and let us suppose it is say the positive x-axis. Now the body is moving towards the negative x-axis. The position I am marking out, it is say x equals to minus of x2, x equals to minus of x1, x equals to 0, x equals to x1, and x is equals to x2. Got it? अब बेटा टाइम ओरिजिन हम पॉइंट बी को ले रहे हैं। द टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, टाइम टी इज इक्वल्स टू से t1, टाइम टी इज इक्वल्स टू से t3, टाइम टी इज इक्वल्स टू से t4 एंड टाइम टी इज इक्वल्स टू से t5। बात समझ आ गई? देखिए, पॉजिटिव वैल्यू x का डिक्रीज होता जा रहा है विद द इंक्रीज इन टाइम, टाइम बढ़ता जा रहा है। जब बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू x का डिक्रीज होता जा रहा है और टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। ये आपको यहां पर भी दिखाई देगा। टाइम प्लॉट करा हमने हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, वर्टिकल के लॉन्ग पोजीशन प्लॉटेड है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पोजीशन और द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x वाज मैक्सिमम। तो यहां पर x2 आएगा, फिर
पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर x का वैल्यू डिक्रीज होकर 0 हो गया और टाइम t का वैल्यू कुछ है, तो बेटा ये वाला पॉइंट O, इस वाले पॉइंट को रेफर करेगा कि पॉजिटिव वैल्यू x का डिक्रीज होकर 0 हो गया, तो यहां पर जो टाइम होगा दैट विल बी t3। फिर उसके बाद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होता जा रहा है। इतने सेक्शन को देखिए, टाइम बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x बोल रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। बात समझ आ रही? सो इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। कॉपी कर लें इसको। डन? नया The body is moving with a constant velocity के ग्राफ्स हो गए। The body is moving with variable velocity. With variable velocity. बेटा वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बात समझ आई? बॉडी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? यहां पर फिर से दो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। पहला द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। The body is moving with increasing velocity. Suppose टाइम को यहां पर प्लॉट किया, पोजीशन x को यहां पर प्लॉट किया। क्लियर? इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। सॉरी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, the position is plotted over here, time t is plotted over here, कुछ ऐसे होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कब होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कब होता है? टाइम बढ़ेगा, पोजीशन भी बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अस सपोज से दैट द बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस पॉजिटिव x axis. It is say the point O, it is say the point A, it is say the point B, it is say the point C, and it is say the point D. क्लियर? ओके, बात समझ आ गई? Now let us suppose say that the velocity of the body is 0, x is equals to 0 and time t is equals to 0. X is equals to say x1, time t is equals to say t1. X is equals to say x2, time t is equals to say t2. X is equals to x3 and time t is equals to say t3. X is equals to say x4 and time t is equals to say t4. Got it? टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, पोजीशन इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात की है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं। लेट अस सपोज से 5 मीटर पर सेकंड कहीं यहां पर है, लेट अस सपोज से 10 मीटर पर सेकंड कहीं यहां पर है, लेट अस सपोज से 15 मीटर पर सेकंड एंड लेट अस सपोज से 20 मीटर पर सेकंड। तो सेंस हो क्या रहा है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पोजीशन भी बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। बात समझ आ गई? तो ग्राफ इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, इसको हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। समझ आ गई बात? कॉपी करें इसको। कॉपी करिए। हो गया? डन? फिर इसके बाद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो बेटा वेलोसिटी टाइम के साथ अगर डिक्रीज होता जाएगा तो कभी ना कभी तो जीरो होगा, कभी ना कभी तो जीरो होगा। जब जीरो हो जाएगा बॉडी का वेलोसिटी तो इसका मतलब बॉडी का पोजीशन चेंज होना बंद हो जाएगा। तो नो डाउट पोजीशन तो बढ़ता जाएगा। जैसे इमेजिन करिए कि कोई भी गाड़ी है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही थी रोड के ऊपर, ड्राइवर ने जेंटली जब ब्रेक अप्लाई किए, जिस टाइम पे ब्रेक अप्लाई किए उस टाइम पे स्पीड मैक्सिमम, उसके बाद
डिस्टेंस कवर होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगा। फाइनली गाड़ी कभी रेस्ट में आ जाएगी। द पोजीशन इज प्लॉटेड ओवर हियर, टाइम t इज प्लॉटेड ओवर हियर, द ग्राफ इज अगेन द हाइपरबोलिक कर्व। बस लास्ट में यहां पर पैरेलल रख के छोड़ना है। ये वाला जो सेक्शन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। बात समझ आ गई? ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में इन टोटल स्टूडेंट्स आपको 7 ग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। आप पहले इसको कॉपी करें। चलिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करने से पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ रीडिंग के। बात समझ आ गई? या तो उन्हें क्रैक किया जाता है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमेशा हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करवाई जाती है। बात समझ आ गई? तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे को क्या देगा? पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे को वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना सिखाता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, the velocity of the body can be calculated velocity of the body can be calculated by from the position time graph. Position time graph. Got it, sir? अब बेटा वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हमेशा स्लोप ऑफ द ग्राफ होती है, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ होती है। तो वेलोसिटी या फिर आप स्पीड की बात करें, इट इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। गॉट इट? पोजीशन वेलोसिटी के लिए लेट अस सपोज से सिंबल हम यूज करें वेलोसिटी, या फिर स्पीड के लिए सिंबल यूज करें v। स्लोप क्या होती है? स्लोप होता है हमेशा tan ऑफ थीटा। स्लोप किसी भी ग्राफ का हमेशा tan ऑफ थीटा होता है। क्लियर? वे व्हाट इज थीटा? देखिए बेटा, एट एनी गिवन टाइम इंस्टेंट जब आपने वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है फ्रॉम द ग्राफ, तो उस गिवन टाइम इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी पोजीशन है, ठीक है, या ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट आता है, आपने उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द ग्राफ। अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉन टेंजेंट टाइम एक्सेस के साथ कोई एंगल बनाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से मेजर करना होगा। एंगल बनाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से मेजर करना होगा। बात समझ आ गई? क्लियर? एंगल हमेशा ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस से मेजर किए जाते हैं। ओके, जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो क्लॉकवाइज में मेजर किए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना है एंगल को फ्रॉम द ग्राफ। तो कैसे? किसी भी टाइम इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट ग्राफ पे एग्जिस्ट करेगा, देन यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट दैट पॉइंट। अब ये जो ड्रॉन टेंजेंट है, ओके, इस ड्रॉन टेंजेंट ने टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल डिफाइन किया, वो जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, वे व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ at any value of time. Theta is the angle between the tangent drawn to the graph at any value of time. Okay? And the time axis. Time axis. बात समझ आ गई?
तो बेटा स्लोप क्या होता है? स्लोप हमेशा tan थीटा होता है. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा. तो थीटा एंगल है. बात समझ आ गई? कॉपी करें इसको. तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी या फिर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी और स्पीड. गॉट इट? कॉपी करें इसको. कॉपी करिए. डन. अब देखिए मैं आपको सिखा देता हूं कि फ्रेंड्स किसी भी ग्राफ से या किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालना है. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. बेटा देखिए जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं तो स्लोप में ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, बहुत आसान होता है. ठीक है. जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होते तब स्टूडेंट्स ये स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मैं स्लोप आपको निकालना सिखाता हूं. ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. ओके ओके. नाउ लेट अस सपोज से the position was plotted over here and time t is plotted over here. Time is plotted along the horizontal axis. Okay? आपको याद होगा अभी हमने इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ किया था. इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे था. ठीक है सर. बाद में यहां पर आपस में पैरेलल करना होता है. अब देखिए ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल एट एनी टाइम इंस्टेंट सपोज से t इक्वल्स टू t1 पर एट एनी टाइम इंस्टेंट से t1 वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइम इंस्टेंट को डिफाइन करेंगे. टाइम इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ग्राफ पर है, टाइम इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ग्राफ पर है उसको डिफाइन करेंगे. सबसे पहले गिवन टाइम इंस्टेंट को डिफाइन करेंगे, मार्क करेंगे. गिवन टाइम इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट ग्राफ पर है उसको डिफाइन करेंगे. डिफाइन कर लिए. अब डिफाइन करने के बाद क्या करना है? स्टूडेंट्स आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द ग्राफ एट दिस पॉइंट. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द ग्राफ एट दिस पॉइंट. समझ आ गई बात? अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द ग्राफ एट दिस पॉइंट तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए. अब बेटा देखिए यहां पर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया टू द ग्राफ एट दिस पॉइंट से ए. क्लियर? अब ये जो ड्रॉन टेंजेंट है ये टाइम एक्सेस के साथ ये हमने एंगल डिफाइन किया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. कैसे डिफाइन किया? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. तो बेटा ये वाला जो एंगल है दैट इज थीटा. क्लियर? ओके. सो वी आर गोइंग टू से दैट एट टाइम इंस्टेंट से t1, एट टाइम इंस्टेंट से t equals to t1. okay, let us suppose the velocity is v. V be the velocity. तो बेटा वेलोसिटी किसके इक्वल? वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. क्लियर? अब बेटा स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इट विल बी tan थीटा. इट विल बी tan थीटा. तो दोबारा देखें
पहले गिवन टाइम इंस्टेंट की बात होगी, उस गिवन टाइम इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद ये टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट द मार्क्ड पॉइंट। फिर ये ड्रॉन टेंजेंट टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्यूट एंगल बनाए या ऑब्ट्यूज एंगल बनाए वो मैटर नहीं करता, बस एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मार्क किया जाएगा। तो एंगल जो भी डिफाइन किया उसे मार्क करें और फिर बोले द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू tan थीटा। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? तो स्लोप किसी भी ग्राफ का ऐसे निकाला जाता है। कॉपी करें इसको। डन। अब देखिए, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता, बेटा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने किया था, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने किया था, ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से हम अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स की बात करते हैं, टाइम t इक्वल्स टू t1, टाइम t इक्वल्स टू t2। ओके, पहले टाइम इंस्टेंट t1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ के ऊपर पॉइंट, लेट अस सपोज से दैट्स द पॉइंट है। टाइम t इक्वल्स टू t2 के लिए ग्राफ के ऊपर एक और पॉइंट, लेट अस सपोज से, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और जब आप ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो ड्रॉन टेंजेंट है वो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के साथ में कोइंसाइड करेगी, जो ड्रॉन टेंजेंट है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगी। तो टेंजेंट जब आप पॉइंट ए पर ड्रॉ करें या बी पर ड्रॉ करें, तो जो ड्रॉन टेंजेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल थीटा डिफाइन करेंगी। बात समझ आई? तो एट टाइम इंस्टेंट t1 द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी tan थीटा, एट टाइम इंस्टेंट t2 द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज अगेन इक्वल्स टू tan थीटा। पल्ले पड़ गई बात? अब देखिए, देखिए एट टाइम t इक्वल्स टू t1, लेट अस सपोज से v1 इज द वेलोसिटी। So velocity as per concept it will be equals to the slope of the graph. The slope of the graph, जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट बी, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो ड्रॉन टेंजेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। तो पॉइंट ए पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। तो दोनों ड्रॉन टेंजेंट एंगल थीटा फॉर्म करेंगी। बात समझ आ गई? तो बोलेंगे कि ड्रॉन टेंजेंट ने और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ने टाइम एक्सेस के साथ एंगल थीटा फॉर्म किया था। सो v1 is equals to tan theta. Again at time t equals to t2 at any other time instant. Let us suppose say v2 was the velocity of the body or the speed of the body. So as per concept it is again equals to tan theta. Now since theta is same in both the cases, so we can say that v1 is equals to v2. जैसा कि मैंने आपको जब ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले कराए हैं उनके अंदर बोला था कि जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, मतलब द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्लियरली कैलकुलेशन से आपको दिखाई दे रहा है कि v1 is equals to v2, that is the body is moving with constant velocity। समझ आ गई बात? ओके, क्लियर? ओके। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या फिर स्पीड, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ओके, समझ आ गई बात? ओके। अब बात करते हैं स्विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो या फिर स्पीड टाइम ग्राफ बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि हम बॉडी को कंसीडर करेंगे कि बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई बात? ओके, ओके। द फर्स्ट केस, द बॉडी इज मूविंग with constant velocity. The body is moving with constant velocity.
Now since let us suppose say v be the magnitude of the velocity or we can say speed, तो बेटा बॉडी का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट टाइम इंस्टेंट से डिफरेंट होने वाली है. सो द ग्राफ इट विल बी द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. तो ग्राफ कैसा होगा? द ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ is the straight line parallel to time axis. बात समझ आ गई? कॉपी करें. कॉपी करिए. Now the second case. The body is moving with constant acceleration. So as constant acceleration बोला जाता है, constant retardation बोला जाता है. मतलब the change in velocity in magnitude is equal in equal time intervals. Okay? तो सबसे पहले तो acceleration के ग्राफ्स दूंगा. We can say it is the case for uniformly accelerated motion. Accelerated motion. तो पहले दो ग्राफ्स देंगे जिनके अंदर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे. कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Since suppose say the magnitude of velocity or speed is plotted along the vertical axis and the time t is plotted along the horizontal axis. The graph, it will be the straight line. The graph will be the straight line which is inclined at some acute angle which is measured in the anti-clockwise sense with the time axis. बात समझ आ गई? ये पहला ग्राफ. दूसरा ग्राफ the magnitude of the velocity is plotted along the vertical and time is plotted along the horizontal. Clear? बात समझ आ गई? तो दोनों ही केसेस में constant acceleration है. बात समझ आई? And the graph, the velocity time graph is the straight line graph. The straight line graph is inclined at some acute angle which is measured in the anti-clockwise sense. Got it? कॉपी करें. तो बेटा ये ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के. इट इज द ग्राफ फर्स्ट एंड इट इज द ग्राफ सेकंड. गॉट इट? ओके. अब बात करेंगे सेंस जिसमें बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ रिड्यूस होता जाएगा. मतलब रिटार्डेशन की बात करें, कांस्टेंट रिटार्डेशन की बात करें. The body is moving with constant retardation. ओके. यहां पर फिर से दो ग्राफ्स हैं. The magnitude of the velocity or speed is plotted along the vertical and the time t is plotted along the horizontal. The graph, it will be the straight line graph. The graph will be the straight line graph. Okay? देखिए, the velocity time graph is inclined at some obtuse angle which is measured in the anti-clockwise sense. Got it? Okay? So let us say the first graph. And let us say the second graph. The time is plotted along the horizontal
and the magnitude of velocity or speed is plotted along the vertical. तो जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, पहले पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होकर के जीरो होगा, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वेलोसिटी का। फिर से देखें, दिस ग्राफ इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहां पर जो एंगल आएगा, द एंगल ऑफ VT graph, the angle, the VT graph is obtuse, measured in anti-clockwise sense. Anti-clockwise sense. बात समझ आ गई? कॉपी कर लें। तो ये दो ग्राफ्स हैं। Let us say the graph second. Done? Now, the body will move. The body is moving with variable acceleration. Variable acceleration. ओके, यहां पर फिर से सिर्फ दो ग्राफ्स होंगे। फर्स्ट, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, increasing acceleration, the time is plotted along the horizontal axis, the magnitude of velocity or speed is plotted along the vertical axis. बेटा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, हाइपरबोलिक ग्राफ है। पल्ले पड़ गई बात? ओके, तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ है। फिर इसके बाद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कॉपी करिए इसको। Done? Now the next one will be for the body moving with decreasing acceleration. तो ग्राफ कैसा होगा? The magnitude of velocity or speed is plotted over here and time t is plotted over here. Got it? So the graph, it will be a curve. स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व है। और फिर यहां पर लास्ट में पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहां पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात समझ आ गई? कॉपी कर ले इसको। डन? ओके, अब देखिए, अब सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट करते हैं? बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम हमेशा दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और displacement of the body ठीक है बेटा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, चलिए मैग्नीट्यूड वर्ड हटा लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे? सिंस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना है तो हमेशा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? तो बेटा डिस्टेंस
or displacement of the body is always equals to area under the speed time graph or the velocity time graph for the given time interval. क्लियर? बेटा बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है. ठीक है, एग्जांपल देता हूं. Let us suppose say the speed is plotted over here and time t is plotted over here. ग्राफ कुछ ऐसे है. बात समझ आ गई? या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा शेप अच्छा बना लेते हैं. ग्राफ कुछ ऐसे है. अब देखिए ग्राफ को पहले डिफाइन कैसे करना है. ओ ए बी सी. बेटा ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको टाइम का वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज इट t1. बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको टाइम का वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज इट t2. सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको टाइम का वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज इट t3. तो आपसे बोला जाएगा ये टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t3. तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पर ज्योमेट्रिक फिगर्स बनती हुई दिखाई दे रही है आपको. पहले जब आप ग्राफ ओ ए को देख रहे हैं तो सिर्फ आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है. तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. बात समझ आ गई? जब आप ग्राफ ए बी को देख रहे हैं, सिर्फ ए बी सेक्शन को देखिए, तो ए बी के नीचे जो फिगर आपको दिखाई दे रही है वो ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है. अब यहां पे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे. अब बीसी को देखिए, जब आप बीसी को देख रहे हैं तो बीसी के नीचे जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ग्राफ में, इट इज द रेक्टेंगल. तो यहां पर आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए सॉल्व करेंगे. समझ आ गई बात? तो एरिया अंडर द ग्राफ ऐसे निकालते हैं. क्लियर? ओके. तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट of the body in time interval से 0 to t3. 0 to t3 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल नाम दे देते हैं. लेट अस कॉल दिस पॉइंट ऐसे d and let us call say this point as say E and this point as say F. तो area of the triangle say ODA plus area of trapezium. ट्रेपीजियम का नाम देते हैं ABED. ओके, ABED plus the area ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का नाम देते हैं BCFE. समझ आ गई ये बात? कॉपी कर लें इसको. कॉपी करिए. डन. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए. बेटा जब डिस्टेंस निकालना है और जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों में एक बात का ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में बेटा साइन ऑफ वेलोसिटी कंसिडर नहीं करना. ठीक है? जैसे ग्राफ पॉजिटिव टेरिटरी में हो और नेगेटिव टेरिटरी में भी आए तो आपने सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है. वेलोसिटी का पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करना, मतलब साइन कंसिडर नहीं करना. द साइन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कंसिडर्ड
in the calculations. The sign of velocity is not considered in the calculations. बात समझ आ गई? और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले तो एरिया निकाल लें. अगर बेटा जो एरिया है, जो फिगर है, अगर वो पॉजिटिव पार्ट में एग्जिस्ट करे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव. ठीक है. अगर बेटा जो एरिया है वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वाले पार्ट में एग्जिस्ट करे, तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है. मतलब एरिया के आगे नेगेटिव साइन लगा देना. साइन ऑफ वेलोसिटी is considered in the calculations. ये बात समझ आ गई? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, बात समझ आ गई? ये पहली इंपॉर्टेंस है. ये पहली इंपॉर्टेंस है. कॉपी करें इसको. डन. अब बेटा देखिए, बेटा दूसरी चीज जो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं. जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप मेथड से. स्लोप मेथड मैंने आपको अभी सिखाया था. बेटा दूसरी चीज जो कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ से, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन. अब बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा? द एक्सेलरेशन is always equals to the slope of velocity time graph. Say A be the acceleration and it will be equals to tan theta. Theta क्या हो जाएगा? Theta will be the angle between the drawn tangent to the graph at any point on it and the time axis. Theta is the angle between the tangent drawn to the graph to the say velocity time graph, okay, at any point on it and the टाइम एक्सेस. बात समझ आ गई? तो बेटा स्लोप हमेशा tan थीटा होता है. स्लोप हमेशा tan थीटा होता है. कॉपी करें. जैसे अभी मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्लोप मेथड से. वही स्लोप मेथड लगेगा. ग्राफ देखेंगे, गिवन टाइम के करस्पॉन्डिंग ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द ग्राफ एट द मार्क्ड पॉइंट ऑन इट. अब ये जो ड्रॉन टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सेस के साथ कोई एंगल बनाएगी. एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर होगा. समझ आ गई ये बात? तो स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलेंगे इट इज tan थीटा. ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है. कैसे? स्लोप मेथड से. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कॉपी करें इसको. यस स्टूडेंट्स, डन. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ से. ठीक है. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे.